Assalamu alaikum students, welcome back. I am Sir Junaid, your English teacher. Students, yesterday in our previous class, we once again started tenses, the remaining tenses, and we will cover all tenses in our next classes. So, this is lecture number 23. In our yesterday lecture, we came to know about present perfect tense. Yesterday, we studied about the active structure, the sentence structure uses and उर्दू identification of present perfect tense. और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी हाउ टू चेंज the sentences the present perfect tense, the active sentences the present perfect tense into passive voice. This is the part of your course. और आप लोगों की इंग्लिश के पेपर में जो सेंटेंसेस आती है एक्टिव पैसिव वॉइस की, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी सेंटेंसेस आ सकते हैं. इसके अलावा उर्दू सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई उर्दू सेंटेंस आ सकता है. सो in our today lecture we will cover how to change present active sentences the present perfect tense into passive voice. So you are requested to listen my lecture carefully with full attention and try to understand things. Try to make your concept clear. Once you make your concept clear, you can easily change active sentences into passive voice. So we should start our lecture. Now how to change present perfect tense into passive voice. Uh, this is page number 93, 94 and 95 in your English B book. आप लोगों की जो इंग्लिश बी की बुक है उसमें पेज नंबर 93, 94, 95 पे एक्सरसाइजेज हैं. यू हैव टू ट्रांसलेट दोज Urdu sentences, Urdu passive sentences, the present perfect tense into English. So before doing that, what you have to do, you have to make your concept clear. Concept about what? Sentence structure. Sentence structure is very important. So when you change present perfect tense into passive voice, what you have to do, I told you, I have explained this thing already, that in passive sentence we have to use third form of the verb. कोई भी tense हो, कोई भी tense, you have to use third form of the verb. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव. हैज़ एंड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैसिव में आप लोगों ने क्या करना है, हैज़ और हैव के साथ आप लोगों ने जस्ट बीन लगानी है. यू हैव टू जस्ट एड बीन, BEEN. बी यू हैव टू बी केयरफुल यूजिंग बीइंग एंड बीन. बीन जो होता है ये परफेक्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, इन फ्यूचर परफेक्ट में हम बीन यूज़ करते हैं. बल्कि और इसके अलावा जो कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, उसमें बीइंग आता है. ओके, सो आई हैव ऑब्जर्व्ड that most of the students, when they change these sentences into passive voice, so instead of being they use being, they get confused. So you no need to get confused. Okay, so been. Now मैंने कल भी बताया था कि have been किसके साथ आएगा, has been. सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को आप लोगों ने देखना है. अगर सब्जेक्ट आपके पास आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन या प्लूरल सब्जेक्ट हो, देन यू हैव टू यूज़ हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सम टाइम ये होता है कि जब हम एक सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल में होता है, बट जब हम पैसिव में उस सेंटेंस को चेंज करते हैं तो पैसिव में जब हम ऑब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्ट में लेके आते हैं तो उसमें सपोज़ अगर आप हमारे पास पैसिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट में लेके आते हैं और वो सिंगुलर हो, तो आपने उसी के मुताबिक आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, हैव बीन, हैज़ बीन.
ओके, सपोज आपके एक्टिव सेंटेंस में आपके पास स्ट्रक्चर में हैव बीन है, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर आ रहा है, देन यू हैव टू यूज हैज बीन। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर हैव बीन है तो नीचे भी हैज बीन आएगा, नो, इट depends on the subject. If the subject is singular, then has been. If the subject is plural, then have been. Okay, so I hope you understand what I am saying. So now we will study three tenses, sentences, uh, assertive sentences, negative sentences, and interrogative sentences. The structure, the basic structure of present perfect tense of these three types of sentences. Now this is assertive sentence, declarative sentence, affirmative sentence. So it means that here we will study that what is the basic structure of assertive sentence, a present perfect tense. इस प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. ये जो सामने स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, दैट इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस. तो आप देख ले, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में, सब्जेक्ट लास्ट में, हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, फिर लास्ट में सब्जेक्ट आएगा. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. आप लोगों ने जस्ट बीन ऐड करनी है. फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन दीज एग्जांपल फ्रॉम योर बुक, जो लास्ट में पेज नंबर 176, वहाँ जो 20 सेंटेंसेज है, वहाँ से मैंने जो उसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस थे वो मैंने उठा के दिए. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन, दे हैव बॉट अ हॉर्स. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकॉज इसमें हमारे पास हैव है. दे हैव बॉट अ हॉर्स. बॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बाई. सो दे हैव बॉट अ हॉर्स. तो अ हॉर्स, अभी इसमें देख ले ऊपर हैव है, एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास हैव है, बट नीचे जब अ हॉर्स स्टार्ट में लेके हम आते हैं तो अ हॉर्स दैट इज सिंगुलर, तो फिर नीचे क्या आएगा, हैज बीन. हैव बीन नहीं, ऊपर हैव है तो नीचे हैज नहीं है, क्योंकि अ हॉर्स इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारे पास हैव्स आएगा और बीन का हम ऐड करेंगे. सो अ हॉर्स हैज बीन बॉट बाय देम. दे विल चेंज इनटू देम. मैंने शुरू वाले लेक्चर में अब मैंने आप लोगों को जितने भी प्रोनाउंस थे, पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, दे देम, वी अस, आई मी, यू, शी हर, he has, sorry, he him. So these are the two cases, objective case and subjective case, so they will change into them. Okay, the second example, the board has given me a gold medal. A gold medal has been given to me by the board. अभी इस सेंटेंस में ये सेंटेंस आप लोग इस तरह भी चेंज कर सकते हैं कि अ गोल्ड मेडल हैज, सॉरी, आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है. तो अगर किस सेंटेंस में आपके पास दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप दोनों कर सकते हैं. इसमें देख ले, मी भी एक सब्जेक्ट है और अ गोल्ड मेडल दोनों ऑब्जेक्ट है. तो अ गोल्ड मेडल हैज़ बीन गिवन टू मी बाय द बोर्ड, और आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल by the board. Okay, so this was all about assertive sentence. I hope you understand what I am saying. Now the next one, negative sentence. This is very easy and simple. जो assertive sentence में जो आपके पास जो structure है, sentence structure है passive voice, उसमें आप लोगों ने just you have to put the word not between auxiliary verb and main verb. Okay, has not been, have not been. Okay, so you have to just put the word not between have, had and been. Has not been, have not been. Okay, for example, Sadia has not accepted my invitation. नीचे है my invitation has not been accepted by Sadia. You can take many example. For example, आप कहते हैं ना कि अहमद has not learned his lesson. So his lesson has not been learned by Ahmad. Okay, या the peon has not rung the bell. The bell has not been rung by the peon. Okay, so you can टेक मैनी एग्जाम्पल. आप लोग प्रैक्टिस
करे, इसके खुद से सेंटेंसेस बनाए, सोच के बैठ के एक पेज निकाल के उस पर सेंटेंसेस बनाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसी सेंटेंस को आप लोग पैसिव में चेंज करें. So this was the structure of negative sentence. You have to just add the word not between have and has, have and been. Okay. Now the next one, that is interrogative sentence. तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ एंड हैव, उस सेंटेंस की स्टार्ट में आप लोगों ने लेके आनी है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, हैज़ अमित सबमिटेड थीसिस टू हिज सुपरवाइजर. सो फर्स्ट तो आप लोगों ने ये करना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस. पेपर में कोई सेंटेंस आ जाए, पहले आप टेंस आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टेंस है, फिर उसके बाद उस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में सोचें. सो हैज़ हमीद सबमिटेड थीसिस टू हिज सुपरवाइजर. सो हैज़ थीसिस बीन सबमिटेड बाय Hamid to his supervisor. So this is the way to change interrogative sentence into passive voice of present perfect tense. You can take many other example as well. आप लोग बैठ के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव सेंटेंसेस बनाए, 10 to 15 सेंटेंसेस बनाए और उसको पैसिव में चेंज कर दे, प्रैक्टिस करें. बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस किया करें हर टेंस की. आप हर टेंस की अलग अलग सेंटेंसेस बनाएं. मिक्स सेंटेंस उसमें इंट्रागेटिव भी होनी चाहिए, नेगेटिव और साथ असर्टिव सेंटेंस सारे होने चाहिए. अब डिफरेंट वर्ब्स को लेके आप उसको कर ले, प्रैक्टिस करें. ओके. सो नाउ इट वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस टेंस की प्रैक्टिस करनी है. इसके अलावा पेज नंबर 93, 94 और 95 पे जो एक्सरसाइज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू सेंटेंसेस की, पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस की उर्दू सेंटेंसेस हैं, उसमें एक्सरसाइज हैं. तो मैं इस लेक्चर के साथ आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ. आप लोग बैठ के अपनी नोटबुक्स पे उतार दें और याद करें, प्रैक्टिस करें. वो उर्दू सेंटेंसेस है. नाउ इसके अलावा ये भी मैंने आपको बताना था कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू translate passive Urdu sentences of present perfect tense into English. So write down those exercise in your notebooks and try to learn and try to do practice. इसके अलावा in our next class प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद जो टेंस होता है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ. आई थिंक लेक्चर नंबर 9, 10, 11 इस तरह के आप लोग देख लें, उसमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस से हम स्टार्ट करेंगे. द एक्टिव स्ट्रक्चर, पास्ट simple tense, past indefinite tense. So it was enough for today. I will back in lecture number 25. So see you, take care, Allah Hafiz.